રામ કબીર ભજનની શરૂઆત કરજો. राम कबीर सोने. बसत कहाँ और ढूंढे कहाँ, किस विधि आवे हाथ. कबीर तब ही पाइए जब भेदी लीजिए साथ. बट कमुआ भेदी बिना कौन बतावे बात. चलते चलते चुक भयो एक पग पाषाण. जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम. हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम. जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम. अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है. अमर ये दीप है जिसकी कभी बुझती न ज्योति है. इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम. जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम. जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है. कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है. इसी सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम. जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम. करके मन को तुम रखे सत्संग को सुनना. होके तल्लीन भावों से सुनहरे फूलों को चुनना. इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम. जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ. राम कबीर. थैंक यू.
રામ કબીર કાકા, બહુ સુંદર ભજન સંભળાવવા બદલ, આપણું એક આધ્યાત્મિક વાતાવરણ રવિવારે સવારના ઉભું કરવા બદલ તમારો ઘણો ઘણો આભાર. શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ યુએસએ તમારો આભાર માને છે અને આ રીતે અમને આશીર્વાદ રૂપી ભજન સંભળાવતા રહેજો. થેન્ક યુ. રામ કબીર સર્વ ભક્તજનોને આપણે શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ યુએસએ તરફથી યોજાતા આ કબીર વિસ્ડમ નામના પ્રસંગમાં આપ સર્વનું સ્વાગત કરતા આનંદ અનુભવું છું. અને આપણે આજના ભજનની બહુ સુંદર કડીઓ જે કબીરજીનો એક દોહાની યાદ અપાવી દે છે કે હૃદયા ભીતર આરસી મુખ દેખા નહીં જાય, મુખ તો તબહી દેખી હો દિલ કી દુવિધા જાય. અને એ પણ ક્યારે કે જ્યારે આપણે એક બીજા ભક્તો જોડે સત્સંગનો લાવો લઈએ, અને આ પણ એક સત્સંગનો જ લાવો છે. તો એ સુંદર સત્સંગમાં આપણાને આજે જે પ્રેરિત કરવા બદલ બહુ સુંદર રીતે આ ભજન પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું. એ નટુભાઈ ભક્ત તલસા ટલ્સા ઓક્લાહોમા અને આમ અંબેટી ઇન્ડિયા ગામના, અને ત્યાંથી જોડાવા બદલ એમનો ઘણો ઘણો આભાર. હવે આજની જે શરૂઆત છે એ કંઈક મને એક નાની વાત યાદ આવે છે, એના પરથી આપણે કરીએ. તો અહીંયા અમેરિકાની અંદર ઇલિનોઇસ સ્ટેટની અંદર એક લેક ફોરેસ્ટ કોલેજ છે. એ લેક ફોરેસ્ટ કોલેજ નું આજે મેન્શન એટલા માટે કરું છું કે ત્યાં એક નજીકમાં એક લેડી રહેતી હતી. એનું નામ હતું ગ્રેસ ગ્રોનર. અને એ વ્યક્તિ બહુ સાદું જીવન જીવી, આખી જીવનમય એમણે બહુ સિમ્પલ લાઈફ જીવ્યા. અને જ્યારે એઓનું મૃત્યુ થયું ત્યારે એમના વિલમાં લખી ગયેલા કે મારી સંપત્તિ વિચ ઇઝ અબાઉટ $7 મિલિયન, જેમનું સાદું જીવનમાંથી એમણે $7 મિલિયન એ ડોનેશન એમણે લેક ફોરેસ્ટ કોલેજ ઇલિનોઇસમાં આપ્યું. એક સાદું જીવનમાં આ એક સારી વસ્તુ કહેવાય. એમણે વિચાર કર્યો કે કોઈક માણસોને એના વિદ્યાદાન તરીકે આપી શકું કોઈ જગ્યાએ. તો જેવું દાન આ લેક ફોરેસ્ટ કોલેજને મળ્યું તો એમણે પ્રથમ એવું કહ્યું કે એમણે જે લેડી રહેતા હતા જે ઘરમાં, એ ઘર બાય કરી લીધું કોલેજે. અને એ એટલા માટે બાય કર્યું કે અત્યાર પછી બધા સ્ટુડન્ટો એવું જોઈ શકે એ ઘરમાં જઈને જોઈ શકે કે કેવી રીતે એ લોકો જીવન જીવ્યા, સાદું એકદમ જીવન જીવીને આટલા બધા મોટા વિચારો કે ભવિષ્યમાં બાળકોને જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય, જ્ઞાનનો ઉમેરો થાય, જ્ઞાન વધે, એના માટે એમણે જીવનભર પ્રયાસ કર્યા કહેવાય. તો એ કોલેજનું એક વિશિષ્ટ કામ મેં તમને કહ્યું તેમ કે એ જે જગ્યાનું મહત્વ એ બહુ સુંદર રીતે આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે એ જગ્યા પર આવા વિચારો આવવા. આમ તો આપણે જ્યારે ફિલાડેલ્ફિયામાં આપણે જ્યારે જઈએ છીએ, આપણે બધે જુદે જુદે પ્રવાસ કરવા, ત્યારે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે એવી ઘણી જગ્યાઓ હોય છે કે જ્યાં એ જગ્યા પર સામાન્ય વ્યક્તિ પોતાનું જીવન સામાન્ય ગુજારે અને એના વિચારો થકી એ જગ્યાનો એક પ્રભાવ ઉત્પન્ન કરી રહી છે. તો એ જ આ વાર્તા આજે એટલા માટે કરવામાં આવ્યું છું કે જેના પ્રકાશ થકી આપણે આખું જગત 650 વર્ષથી પ્રકાશિત થઈ રહ્યું છે, જેમના જ્ઞાન થકી આપણે આજે દેશ પરદેશમાં આપણે પણ કેટલા માઇલો દૂર આવ્યા આપણા વતનથી. અને આપણે જ્યાં વતનમાં રહીએ છીએ એ પણ જે પ્રાગટ્ય સ્થળ આપણા ગુરુ સદગુરુ કબીરજીનું હતું, એ સદગુરુ કબીરજીના પ્રાગટ્ય સ્થાન પર કબીરજી જીવનભર જે જગ્યાએ રહ્યા, એ કંઈક એવી મોટી કંઈક વસ્તુ, એ મોટી જગ્યા એવી નહીં હતી કે જ્યાં ખરેખર સારા વિચારો આવે. પરંતુ એમણે જગ્યા એકદમ સામાન્ય હોવા છતાં એમાં કેટલા મોટા વિચારો પ્રગટાવ્યા કે જેના થકી આપણે 650 વર્ષ પછી પણ આપણે એ વિચારોનું રટણ કરી આપણે આપણું જીવન સુખમય બનાવી શકીએ છીએ. આપણી આજુબાજુ પણ આપણે બધાને સુખી કે સમૃદ્ધ પ્રકાશિત જ્ઞાન પ્રકાશનો લાભ આપી શકીએ છીએ. તો એ જે સ્થળ છે, એ સ્થળ શું છે, કેવું છે, કેવી રીતે આજે એનો ઉપયોગ થાય છે,
અને એનું ત્યાંનું વાઇબ્રેશન શું છે, તો એના વિશે આપણે આજે જોઈશું. પ્રથમ તો આપણે ત્યાંનો વિડીયો કે જે આપણને ભગીરથ દાસજી દ્વારા મળ્યો છે અને એમના મિત્ર દ્વારા એને કમ્પોઝ કરવામાં આવ્યો છે, તો એ વિડીયોનું આજે પ્રથમ આપણે એનું જોઈશું કે એ વિડીયોમાં કેવી રીતે આપણે એ જગ્યાનું અને આપણે એ પોતે એ જગ્યા પર જઈએ છીએ, એ જગ્યાનો અનુભવ કરીએ છીએ, એવો એક અનુભવ આપણાને કરાવવા માટે ઇન્ડિયાથી ભગીરથ દાસજીએ આ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે આપણા માટે. તો પ્રથમ હું વિડીયો મૂકું છું, ત્યારબાદ આપણે એનું ડિટેલમાં સાંભળીશું કે એનું શું મહત્વ છે.
राम कबीर, રામ કબીર. સો બહુ સુંદર વિડીયો કે જે આપણા માટે જ, તમારા અને મારા માટે જે પ્રયત્ન કરીને વિડીયોનું આ આ જે બનાવવામાં આવ્યું છે એ બદલ એમનો ભગીરથ દાસજીનો ઘણો ઘણો આભાર. અને એમને હવે હું આમંત્રિત કરું છું, राम कबीर भगीरथ दास जी. तो जी राम कबीर। आपने ये वीडियो पहले तो ये इतना अच्छा बनाया कि हमारा वो दिल, अगर हमें ऐसा लगने लगा अभी कि हम खुद वहां पे हैं और हम खुद देख रहे हैं, और इसके साथ म्यूजिक भी बहुत अच्छा था. तो अभी आप हमें जो वहां का जो वाइब्रेशन है, इसे अभी वीडियो पे देख के हमें थोड़ा महसूस होने लगा कुछ. तो वहां पे जगह पे अगर जाए तो कैसी वाइब्रेशन रहती है, और पूरा मंदिर के बारे में हमें एक वन बाय वन बताइए कि क्या है, कैसा है, क्यों है, और इससे हमें अगर प्रेरणा क्या लेनी चाहिए. तो राम कबीर, आपके लिए तैयार है. जी, सबसे पहले श्री राम कबीर भक्त समाज यूएसए के सभी भक्तों को राम कबीर, और ये जो कबीर विजडम नॉलेज सेशन है, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि कबीर साहब के ज्ञान को प्रसारित करने के लिए ऐसे अवसर मुझे आपने दिया, उसमें सहभागी होने का अवसर दिया। पिछले सेशन में हम लोगों ने कबीर साहब के प्राकट्य स्थल लहर तारा के विषय में बात की। अब बात फिर वहीं से हम शुरू करके आते हैं कबीर साहब के घर कबीर चौरा मठ मुलगादी पर। कबीर चौरा मठ मुलगादी कबीर साहब की कर्मभूमि, साधना स्थली है, जहां पर उन्होंने अपना पूरा जीवन, बचपन से लेकर अपने उम्र के अंतिम समय तक वो यहाँ रहे। यहीं पर रहकर उन्होंने ज्ञान ध्यान बांटा, और यहाँ से ही पूरे देश में उन्होंने यात्राएं की, और यहीं से उन्होंने अपने ज्ञान को प्रकाशित किया। तो कबीर चौरा मठ मुलगादी कबीर साहब का घर है, जहां वे रहते थे, और सारा कुछ वहीं पर उन्होंने किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कबीर साहब लहर में प्रकट हुए और नीरुन्मा को प्राप्त हुए। नीरुन्मा ने अपने घर कबीर चौरा ले आया। आज जिस जगह का नाम कबीर चौरा है, पुराने समय में उसका नाम नरहरपुरा था। मतलब कि जिसे हम आज कबीर चौरा के नाम से जानते हैं, कबीर साहब के घर के नाम से उस जगह का नाम ही कबीर चौरा पड़ गया है। लेकिन पहले सरकारी दस्तावेज को देखने से पता चलता है कि आज से 600 साल पहले उस जगह का नाम नरहरपुरा था। तो नीरू नीमा का जो घर था नरहरपुरा, वहां पर उन्होंने कबीर साहब को एक बच्चे के रूप में ले आए और वहीं पर उसका पालन पोषण करने लगे। तो जहां कबीर साहब का पालन पोषण हुआ था, उस जगह को आप नहीं लगते। नीरू टीला का मतलब हुआ, टीला मतलब ऐसा जगह जो सामान्य जगह से ऊंची होती है। तो जब आप आएंगे नीरू टीला पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अन्य जो आसपास की जो घर हैं, मकान हैं, उनसे करीब एक फ्लोर ऊंचा वो जगह है, मिट्टी की जगह, ऊंची जगह है। और वहीं पर कबीर साहब को लाकर नीरू नीमा ने उनका पालन पोषण करना शुरू किया। तो नीरू टीला वो जगह है जहां पर कबीर साहब के सबसे पहले पैर पड़े। कबीर साहब ने अपना बचपन वहां पर बिताया था, वहीं पर वो चले थे, वहीं पर खेले कूदे थे, और वहीं पर उन्होंने जीवन की शुरुआत की थी। तो नीरू टीला पहले कबीर साहब की झोपड़ी थी, कबीर साहब ने वहां जीवन बिताया था। लेकिन आज वर्तमान में नीरू टीला में क्या है, जब आप आएंगे तो आपको क्या दिखेगा? नीरू टीला में सबसे पहले नीरू नीमा की आपको समाधि दिखेगी। नीरू और नीमा की समाधि, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, दोनों साथ में ही है। नीरू नीमा की समाधि है। दूसरा, कबीर साहब की जो पुरानी झोपड़ी थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन उसके जगह पर कबीर साहब के जीवन दर्शन के अनुरूप एक झोपड़ी बनाई गई है, जो अभी नई झोपड़ी है, करीब 10 साल पहले उसका निर्माण हुआ था। तीसरी जो वहां सबसे मुख्य चीज है वो देखने की है,
वो है कबीर साहब का कुआं। आज भी कबीर साहब का कुआं है और उसका पानी निकालकर आप पी सकते हैं। वो पानी इतना मीठा है, इतना अच्छा है, इतना अद्भुत है। उसका टेस्ट इतना मीठा है कि आपको लगेगा कि वाह क्या पानी है। और आप जब पिएंगे उसको तो एक अलग तरह की आपको तृप्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, एक आनंद मिलेगा। हमारे पूर्व के आचार्यों ने उस कुएं को समय समय पर रिपेयर किया और आज भी वो कुआं हमारे साथ है और उसके पानी का उपयोग हम लोग करते हैं। बाहर से आने वाले भक्त उस कुएं का जल को पवित्र जल मानकर पीते हैं और अपने साथ भी ले जाते हैं, वो अपने श्रद्धा के अनुसार। तो वहाँ एक बाल्टी रस्सी रहती है, आप चाहें तो कुएं का पानी निकाल कर पी सकते हैं। मशीन भी लगी है, लेकिन बाल्टी से निकालने का जो आनंद है, पुराने समय के कुएं से बाल्टी से जब हम पानी निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ हम मेहनत करके कुछ पा रहे हैं, ऐसा अनुभूति आपको होगा। नीरू टीला में ही दो और मूर्तियां हैं। एक मूर्ति है सिर कटी हुई, जिसका पता नहीं कि वो किनकी मूर्ति है, उसी जगह से खुदाई में मिली है। एक दूसरी मूर्ति है लक्ष्मी और विष्णु जी की, जो वहीं पर खुदाई में मिली है। दोनों मूर्तियों को वहीं नीरू टीला पर स्थापित किया गया है। मतलब नीरू टीला एक समग्र रूप से देखें तो कबीर साहब के यादों को अभी भी याद दिलाता है। जब आप आएंगे तो ऐसा लगेगा उसको पुराने तरह से ही हम लोगों ने कोशिश किया है कि वो रहे, और कोई आए तो उनको ऐसा महसूस होगी कि जैसा कबीर साहब के समय था वैसे कुछ उनको अनुभूति हो, कुछ पुरानी चीजें उनको समझ में आए। और कबीर साहब के जीवन का जो ऊर्जा है वहां पर, हमारे सदगुरु ने वहां रहकर जो श्रम किया, कपड़ा बुनने का काम भी किया, वहीं पर रहकर उन्होंने शुरू शुरू में ज्ञान देना शुरू किया। तो उस जगह की जो ऊर्जा है, उस जगह की जो खुशबू है, सुगंध, उसको हम लोगों ने कुछ बचाने की कोशिश की है। वो यहाँ आकर आपको महसूस होगा, समझ में आएगा। कबीर साहब जब नीरू टीला में थे और जब उनकी ज्ञान साधना बढ़ गई, दुनिया को पता चल गया कि कबीर साहब सदगुरु हैं, महापुरुष हैं, तो धीरे धीरे वहां पर भीड़ बढ़ने लगी, लोगों की भीड़ आने लगी। वो जगह काफी छोटा है, वहीं पर नीरू नीमा भी रह रहे हैं, कबीर साहब का झोपड़ी है, कपड़े बुनने का काम भी हो रहा है, कपड़े की जो रस्सियां हैं वो फैली हुई है। और जब सत्संग करने लगे तो वहां पर क्या हो गया, सत्संग का जगह छोटा हो गया। तो कबीर साहब के जो शिष्य थे, अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि साहब अब ये जगह बहुत छोटा हो गया है, तो एक ऐसा जगह चाहिए जहां पर हम सत्संग कर सकें बैठकर, केवल आप वहां पर उपदेश देंगे, ये जो घर का कपड़ा बुनना ताना बाना है एक किनारे रहे। तो उनके भक्तों ने कबीर साहब के लिए मिट्टी का एक चबूतरा बनाया। वो उनके घर से बगल में ही, मतलब नीरू टीला के बगल में ही उन्होंने एक कबीर चबूतरा बनाया, मिट्टी का चबूतरा बनाया, जिसपे कबीर साहब बैठकर सत्संग करने लगे। यही जो कबीर चबूतरा है धीरे धीरे कबीर साहब के नाम से प्रसिद्ध हो गया, कबीर चबूतरा, कबीर चबूतरा। और बाद में वो कबीर चौरा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मतलब जो कबीर चबूतरा है, कबीर साहब के बैठने का जो पवित्र स्थान था, वो प्रसिद्धि पाते पाते कबीर चौरा के नाम से हो गया। मतलब कबीर चौरा कबीर साहब का घर, कर्मस्थली और साधना स्थली हो गया। कबीर साहब उस जगह पर बैठकर सत्संग करते थे। जो सत्संगी भाई आते, उन्होंने कबीर साहब से एक दिन शिकायत किया कि साहब हम सब आते हैं सत्संग करने के लिए, और अगल बगल कसाईयों की बस्ती है। कसाई मतलब स्लटर हाउस है। तो कसाईयों की बस्ती है और हम सत्संग करने आते हैं, अच्छा नहीं है, गलत है। हम जिस रास्ते से अच्छे काम के लिए निकलते हैं उसी रास्ते पर लोगों ने क्या किया है, दुकानें खोली हैं, वो काट कर टांगते हैं। ये इसको हमें समझना पड़ेगा। तो कबीर साहब ने एक साखी कही। कबीर साहब कहते हैं, कबीर तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। कबीर साहब ने साफ कह दिया कि भाई हर व्यक्ति अपने कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं कर्म करूंगा
तो उसका फल मुझे मिलेगा, परिणाम मुझे मिलेगा। आप करेंगे तो आप मिलेगा। सिंपल लाइफ में भी हम देखते हैं कि मैंने पढ़ाई की तो मैं पास होऊंगा, मैंने कुछ किया तो उसका फल मुझे मिलेगा। तो कभी सही कि हम काम कर रहे हैं उसका फल हमें मिलेगा, मतलब हम सत्संग कर रहे हैं तो हम आत्मज्ञानी होंगे, हमारा जीवन सुधरेगा, हमारा जीने का तरीका बदलेगा, हम अच्छे होंगे। दूसरा क्या करता है, उसमें हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। हम दूसरों के पीछे भागते हैं, ये अच्छा नहीं है। कौन क्या कर रहा है इसको देखने में हमारा जीवन बीत जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं जो करेगा सो भरेगा। आप उदास क्यों होते हैं? आप दूसरे के ठेकेदार मत बनिए। आप किसी को सिखा नहीं सकते, पहले आप सीखिए, अपने को अच्छा कीजिए, यही आपके हाथ में है। और हम सब जानते हैं जो करेगा वो भरेगा। तो सत्संगियों ने कहा ठीक है, फिर सत्संग चलता रहा। और आज उस जगह पे कबीर साहब की जो चबूतरा है, उस जगह पे आज हमने बीजक मंदिर, हमारे महापुरुषों ने वहां पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया है। और उस मंदिर का नाम है बीजक मंदिर। मंदिर मतलब कबीर साहब का जो मूल ग्रंथ है, नाम बीजक मंदिर रख दिया गया, क्योंकि कबीर साहब वहीं बैठकर लोगों को उपदेश करते थे, वहीं बैठकर बाद में साधना भी करते थे। तो जो ज्ञान आया है वहां पर, कबीर साहब के अंदर ज्ञान उपजा है, वहीं से प्रकट हुआ है, तो उसका नाम बीजक मंदिर रख दिया गया है। और जो बीजक आप पढ़ते भी हैं, उस बीजक का मतलब क्या है? कबीर साहब कहते हैं, बीजक बतावे बित्त को, जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को, बुझे बिरला कोय। कबीर साहब कहते हैं कि जो मेरा बीजक है वो बड़ा ही अद्भुत है। अद्भुत कैसे है? तो जैसे पुराने समय में कोई व्यापारी जो व्यापार करते हैं ना, उनका हिसाब किताब लिखने वाला जो होता है उसको भी बीजक कहते हैं हिंदी में इधर। मतलब आपका जो बही खाता है, जो सीए लोग तैयार करते हैं, उसको बीजक कहते हैं। तो और पुराने समय में लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को, धन को, गोल्ड को, सिल्वर को, सोने चांदी, कहीं उन्होंने जमीन के नीचे रख दिया और फिर उन्होंने एक कोडवर्ड बनाया। और उस कोडवर्ड को जो जानता है, पासवर्ड को जो जानता है, वो उस धन को पा जाता है। कबीर साहब बोलते हैं कि मेरा जो बीजक है वो भी एक कोडवर्ड है, पासवर्ड है। ऐसे शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला को। मतलब बीजक एक ऐसा ग्रंथ है जो जीव को ऐसा शब्द दे देगा कि वो अपने आप को पहचान लेगा। जैसे ताला की चाबी है, बड़ा सा बड़ा ताला है, आप उस पे हथौड़ा मारते रहिए लेकिन मुश्किल है तोड़ना, लेकिन एक छोटी सी चाबी से उस ताले को खोल सकते हैं। तो बीजक ग्रंथ के विषय में कबीर साहब कहते हैं कि एक ऐसी कुंजी है, शब्द की कुंजी है, कि जो जीव का बंद है, ताला लाख है, उसको खोल सकता है। तो कबीर साहब के उस जगह पर बीजक मंदिर है। और वहां पर देखने के लिए अभी वर्तमान में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है कबीर साहब का खड़ाऊ। खड़ाऊ मतलब जो सैंडल हम पहनते हैं, चप्पल पहनते, पुराने समय में हमारे पूर्वज लकड़ी का खड़ाऊ पहनते थे, उस सैंडल को हम खड़ाऊ कहते हैं। तो आज भी कबीर साहब के द्वारा उपयोग में लाया गया खड़ाऊ रखा गया है। आप अगर आएंगे तो वहां पर देख सकते हैं, वो शीशे में पैक करके रखा गया है, और वीडियो में आपने देखा भी। दूसरी तरफ किनारे साइड में कबीर साहब का चरखा रखा है। कबीर साहब कपड़ा बुनने का काम करते थे और उन्होंने कभी इस कर्म को छोटा नहीं माना। कबीर साहब कहते हैं कि हर कर्म अच्छा है। वो कपड़ा बुनते रहे, कपड़ा बुनने का काम करते रहे, तो उनका जो ताना बाना है, कपड़े बुनने के चरखे, ताना बाना, उसको भी वहां पर रखा गया है। और एक लकड़ी का घड़ा है। कबीर साहब लकड़ी के घड़े में जल पीते थे, तो लकड़ी का घड़ा रखा है, उसमें वो जल ग्रहण करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज एक त्रिशूल है। बहुत से लोग जब मठ में आते हैं, आश्रम में यहाँ, तो सवाल करते हैं कि कबीर साहब की इस जगह पर त्रिशूल क्यों है। तो त्रिशूल के पीछे भी एक कहानी है। कबीर साहब ने
एक गोरखपंथी को पराजित किया। बहुत से लोग गोरखनाथ कहते हैं, लेकिन अगर समय की दृष्टि से हम देखें तो वो गोरखनाथ नहीं हो सकते, वो गोरखपंथी साधु थे। गोरखपंथी साधु हमारे आश्रम में आए कबीर चौरा मठ में, और वो त्रिशूल गाड़ कर बैठ गया और बोले, ए कबीर, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो मेरे बराबरी में आके आप शास्त्रार्थ कीजिए, डिबेट कीजिए, हमसे ज्ञान चर्चा कीजिए, और जो हारेगा वो शिष्य बन जाएगा। तो कबीर साहब ने कपड़े बुनने वाली जो धागे की गुच्छा होता है उसको उन्होंने आसमान में फेंका और उसके ऊपर बैठ गए। और कबीर साहब ने कहा कि हे गोरख जी, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप और ऊपर आइए। ये जो कहानी है ये प्रतीक है। जैसे अभी त्रिशूल जमीन पे गड़ा है, त्रिशूल का आधार क्या है? जमीन है। तो जब तक हम जमीन से जुड़े हैं, जमीन से जुड़ने का मतलब यहां पर है हमारे अंदर मान सम्मान पाने का भाव है, हार जीत का भाव है। भले मैं सन्यासी हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि दूसरों को हरा दूं, दुनिया में मेरा नाम हो जाए। वो अभी हल्का नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उसका जो टिकने का जगह है वो जमीन है, भारी है। कबीर साहब इससे परे हो गए हैं, इसलिए वो आसमान में बैठे हैं। तो वहीं पर कहते हैं गोरख जी पराजित हो गए और उन्होंने अपना त्रिशूल कबीर साहब को दे दिया। वही त्रिशूल आज भी यहाँ पर रखा हुआ है। मतलब जो एक तरह से कहें कि जो बीजक मंदिर है, कबीर चबूतरा है, वो कबीर साहब की यादों का एक संग्रहालय है। वहां पर आने पर, हम बैठने पर ऐसा लगेगा कि कबीर साहब के साथ हमारा कनेक्शन हो गया है, कनेक्ट हो गया है। और इतना पीसफुल जगह है, जो लोग यहाँ आए होंगे उन्हें पता होगा कि अगर वहां पर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ ये विशेष जगह है, इंपॉर्टेंट जगह है, जहां पर थोड़ा हमें बैठना चाहिए। उसके बाद जब हम बाहर आते हैं बरामदे पर, बीजक मंदिर के बाहर, तो यहाँ पर आचार्यों की फोटो लगी है और बीजक की कुछ अ, साखियां, सबद, रमैनी लिखी हुई है। और आचार्यों में सबसे पहले हमारे सदगुरु कबीर साहब हैं, दूसरे में सुरती गोपाल साहब हैं। ऐसे करके अभी 24, मतलब 24 आचार्य हैं, उनकी फोटो लगी हुई है। वर्तमान में विवेक साहब जी हैं, तो उनकी फोटो आप देखेंगे बरामदे में, कबीर साहब 1 बाय 1 सबकी फोटो लगी है। फिर जैसे आप आगे आएंगे तो कबीर चौरा मठ का आंगन है, आंगन है, बहुत बड़ा चौड़ा है। उसमें भी एक कुआं है, और उस कुएं में आप आएंगे तो मूर्तियां बनी आपने देखा होगा, तो उसकी एक कहानी है। उस कुएं में कमाली पानी भर रही है। कमाली को आप सब जानते हैं, कबीर साहब की शिष्या है, वो पानी भर रही है। तो दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े पंडित सर्वाजित आए और बोले कि भाई, कबीर साहब का घर कहाँ है? तो कमाली ने कहा कि कबीर साहब का घर तो ऐसे जगह पर है जहां चींटी भी नहीं जा सकती। कमाली कहती, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, पावन टिके पिपील का पंडित लादे बैल। सर्वजीत क्या करते थे? पूरा किताबें लेकर चलते थे, बैलों पे पोथियां लाद कर चलते, बुक्स लेके चलते थे। क्यों? अगर कोई पूछेगा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो हम उनको तुरंत पेज नंबर खोल के दिखा देंगे कि इस पेज में, इस शास्त्र में, भगवत गीता में, रामायण में, आ, वेदों में, उपनिषदों में कहाँ पर किस पन्ने पे क्या लिखा है। तो कमाली ने कहा कि ये तो बहुत स्थूल हो गया ना। कमाली ने कहा, कबीर का घर ऐसे जगह पर है जहां चींटी भी नहीं टिक सकती, और आप ये बैलों में किताब लेकर आए हैं तो क्या होगा? लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो ज्ञान के अहंकार से भरे हुए थे। जब ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? वो ज्ञान से पूर्ण नहीं हुआ। ज्ञान में अहंकार होने से भी हमारा जीवन नीचे हो जाता है और हम सच को नहीं देख पाते। तो उसने कहा, जो कमाली ने कहा था, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, पाँव ने टिके पीपल का पंडित लादे बैल। तो कबीर साहब का जो घर है ऐसे जगह पर है जहां चींटी नहीं जा सकती। चींटी बहुत छोटी होती है, तो चींटी कहाँ नहीं जाती है? वो तो हर जगह चली जाती है। इसका भी मतलब है, चींटी का मतलब यहां पर हमारा मन है। मन के अंदर जो मान सम्मान का भाव है, हार जीत का भाव है,
सम्मान का, पद प्रतिष्ठा का जो भाव है वो कबीर साहब उससे परे हो गए हैं। कबीर साहब किसी को हराना नहीं चाहते, कबीर साहब किसी का तरह के सम्मान से परे हो गए। लेकिन पंडित जी ने कहा कि हम तो शास्त्रार्थ करेंगे। तो कमाली ने कबीर साहब का पता बता दिया, और वो जाकर जब सुरती गोपाल सर्वजीत जी कबीर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। तो कबीर साहब ने कहा कि पंडित जी, आप तो पढ़े लिखे हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, शास्त्र की बात करते हो, और मैं क्या हूं? मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। भाई मैंने कभी कॉपी पेन पुस्तक छुआ नहीं, लेकिन बड़ा मुश्किल है, आपसे मेरी कैसी संवाद हो पाएगा, डिबेट कैसे होगा? तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, आपको करना पड़ेगा। तो कबीर साहब कहते हैं, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। आपका मन मेरा मन एक कैसे होगा? क्योंकि मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीर साहब कहते हैं मैं आंखों देखी बात करता हूं। आंख मतलब केवल ये आंख नहीं, आई नहीं, केवल हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा है। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां, इनसे हम ज्ञान लेते हैं। नाक से गंध का सुगंध लेते हैं, जीभ से टेस्ट का हम लेते हैं, स्पर्श से हम कोई वस्तु कैसी है, कठोर है, नरम है, उसका ज्ञान लेते हैं, कान से शब्द सुनते हैं। तो ये सभी हमारे आंख हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं कहता आंखों देखी, तू कहता कागज की लेखी। किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, वो केवल इंफॉर्मेशन है, सूचना है, अनुभव नहीं है। अध्यात्म में आंखों देखी बात होगी। मैं फिर कहता हूं, पिछले जो बात हमने कही थी, जिसने कभी रसगुल्ला नहीं खाया है वो रसगुल्ले का स्वाद पढ़कर नहीं जान सकता। हाँ, पढ़कर आप जान सकते हैं कि मेकिंग प्रोसेस क्या है, उसमें कितना शुगर रहता है, उसकी बेनिफिट डिमेरिट आप जान सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट कैसा है ये आप नहीं जान सकते। तो कबीर साहब कहते, मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लिखी। सुनी सुनाई बात आप कहोगे, शास्त्र में लिखा है वो बताता है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें हमको खुद डूबना पड़ेगा। तो मैं कहता सुलझावन हारी, तू रहता रुझाई रे। कबीर साहब कहते मैं बात को खत्म करना चाहूंगा एक बार बता के, क्योंकि मैं खा चुका हूं। और आप क्या करोगे? वेद में ऐसा लिखा है, उपनिषद में ऐसा लिखा है, पुराण में ऐसा लिखा है, बात को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आपसे मेरी नहीं होगी। तो सुरती जो सर्वजित हैं उन्होंने कहा कि आप लिख कर दो कि आप हार गए। कबीर साहब ने कहा मसी कागज छुओ नहीं, मैं लिखता भी नहीं, आप लिख लो, कबीर हारे मैं जीता, मुझसे क्या मतलब। तो कहते हैं कि सर्वजीत ने लिख लिया, कबीर हारे मैं जीता। लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा तो उल्टा हो गया, मैं हारा कबीर जीते। इसका भी अर्थ है, मैं मतलब अहंकार। जहां कहीं भी अहंकार है वो हार जाता है, और जहां कहीं भी दासत्व है, विनम्रता है, वो हमेशा जीत जाता है। कबीर साहब जीत गए, सुरती गोपाल का अहंकार खत्म हो गया, वो आए और कबीर साहब के शिष्य बने, तो उनका नाम सर्वजीत से सुरती गोपाल हो गया। और वही हमारे जो कबीर चौरा मठ की आचार्य परंपरा, उसके कबीर साहब के बाद वो आचार्य बने। तो ये कहानी, यहाँ पर कुआं है पुराना, वहां पर मूर्तियां बनी है। सर्वजीत का मूर्ति, कमाली की मूर्ति, कमाल साहब की मूर्ति, पद्मनाभ साहब की मूर्ति, ये सभी वहां पर बनाए गए हैं जो कबीर साहब से जुड़े हैं। फिर आप आएंगे यहाँ पर तो आंगन में सभी संतों की प्राय, जैसे रविदास जी, मीराबाई, दादू साहेब, सेन जी, दरिया साहेब, या जितने भी हमारे गौरा कुम्हार, जितने भी मध्यकाल के संत हैं, उनका मूर्ति लगाई गई है अपने काम को करते हुए। आप आएंगे तो रविदास जी जूता बनाते हुए दिखेंगे, दादू साहेब कपड़ा धुनते हुए दिखेंगे, दरिया साहब कपड़ा सिलते हुए दिखेंगे। मतलब हमारी जो ये संत परंपरा है, जो कबीर साहब से शुरू होती है, वहां पर उन्होंने श्रम को महत्व दिया। वो कहते कर में राम, मुख में राम, कर में काम। मुख में राम, हाथ से हम काम करेंगे और अध्यात्म की उस ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हमने सभी संतों को वहां महत्व दिया है।
और यहाँ पर एक मौलश्री का पेड़ है। 1934 में 1934 3 अगस्त 1934 को गांधी जी भी कबीर मठ में आए थे, और उन्होंने वहां एक्सेप्ट किया था कि मेरी माता जी कबीरपंथी थी, और पूरा उन्होंने वहां पर प्रवचन दिया। वो उस समय के न्यूज़पेपर की कटिंग वहां लगी है, और वहां पर गांधी जी की भी है, जहां पर वो बैठे थे, सत्संग हुआ था। आज भी वो पेड़ है, गांधी जी की वहां पे मूर्ति लगी है। इसके बाद हम घूमते हुए देखते हैं तो पूरे इतिहास को दीवालों पे उकेरा गया है, और यहाँ पर कबीर साहब की समाधि मंदिर है। अब तक आप सब जानते होंगे कि कबीर साहब अपने अंतिम समय में मगहर चले गए थे, तो कबीर चौरा में समाधि कैसे? तो बात ऐसी है कि जब कबीर साहब मगहर गए और मगहर में जाकर उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, तो उनका शरीर नहीं मिला, फूल और चादर मिले थे। फूल चादर को लेकर मगहर में हिंदुओं ने समाधि बनाई। चादर को लेकर जो मुसलमान थे, जो कबीर साहब को अपना पीर मानते थे, उन्होंने मजार बनाया। और दोनों जगह है, आज भी बहुत ही वो दिव्य जगह है, वहां मैं कितने बार जा चुका हूं। तो यहां से कबीर साहब के साथ अंतिम समय में कबीर साहब के साथ काशी से बहुत सारे संत और काशी के जो राजा थे वो भी गए थे, क्योंकि कबीर साहब का निर्वाण का समय था। जब ये सारी बातें हो गई मगहर में, तो जो काशी के राजा थे उन्होंने एक सुझाव दिया कि जब हमारे पास फूल है कबीर साहब का, तो उस जगह पर एक स्मारक समाधि मंदिर क्यों न बनाया जाए, जहां पर लोग जहां पर कबीर साहब ने पूरा जीवन बिताया था। इस बात की सहमति बन गई, सभी संतों ने सहमति दी मगहर में, और कबीर साहब के फूल के कुछ अंश को लाकर यहां पर एक समाधि बनाया गया स्मारक के रूप में। तो जब आप कबीर चौरा आते हैं, गेट से प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले आपको समाधि मंदिर मिलेगा। और उस समाधि मंदिर का जो वर्तमान में स्वरूप है, वो है 1933 में फिजी के भक्तों ने अपने सहयोग से जो मंदिर बनवाया है, पत्थर का मंदिर जिसको आपने देखा, वो अभी तक वर्तमान है। 1933 के पहले वो मंदिर बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन भक्तों के सहयोग से उसको बड़ा बनाया गया। बनारस के बगल में एक जिला है, वहां से बालुआ पत्थर आता है, चुनार का पत्थर से उसका निर्माण किया गया है, तो वहां आने पर आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये जो समाधि मंदिर है, समाधि मंदिर में आप जब बैठेंगे, देखिए हम तो यहाँ रहते हैं, तो यहाँ रहने पर कई बार कई चीजें रूटीन में हो जाती है, तो हम महसूस करते हैं। लेकिन जो पहली बार आते हैं, दूर से आते हैं, वो यहाँ आकर इसकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। आते ही वो बोलते हैं कि साहब यहाँ पर कुछ तो है। तो हमने जो पढ़ा, अपने गुरुओं से सीखा, हमारे गुरु लोग कहते थे कि जिस जगह पर कोई महापुरुष तप साधना कर लेते हैं, वो जगह करीब 1000 साल तक क्या हो जाती है, पवित्र हो जाती है। कहीं भी जिस जगह पर कोई भी महापुरुष आए, वहां पर रहे, उन्होंने कुछ क्रियाएं की, तप साधना की, वहां जाकर वहां की मिट्टी को छुआ, वहां का पानी पिया, या वहां उन्होंने साधना की है, आसन जमाया है, वो जगह 1000 साल तक पवित्र हो जाता है। बहुत सारे दौर आए, अच्छे बुरे चीजें हुई, यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हुई, हमारे गुरुओं ने बताया। लेकिन कबीर साहब की वो जो अनुभूति, जिसकी बात हेमंत भाई कर रहे थे, कि वहाँ की जो ऊर्जा है, वहाँ की जो खुशबू सुगंध है, वो आज भी बरकरार है। आप जब आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम शहर के भीड़ भाड़ से आते हुए यहाँ आते हैं, तो एक अलग तरह की शांति है, बहुत ही अलग तरह की शांति है। और ये लहर तारा से ज्यादा दूर नहीं है, लहर तारा से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कबीर साहब का जहाँ प्राकट स्थल है लहर तारा, वहां से 4 किलोमीटर में ये हमारा कबीर चौरा मठ मूल गादी है। और जब आप बनारस आएंगे, काशी आएंगे, तो आपको दो जगह कबीर साहब के उद्भव स्थली, प्राकट स्थली लहर तारा, कबीर साहब की साधना भूमि, कर्म भूमि कबीर चौरा मठ, दोनों का ही दर्शन बहुत आराम से हो जाएगा। और जैसे लहरतारा की कनेक्टिविटी, वैसे यहाँ की भी कनेक्टिविटी है, और बनारस में पूरी तरह से है। तो आप यहाँ जब आएंगे, बैठेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आप कबीर साहब के उसी पुराने घर में हैं,
जब हमारे सदगुरु यहाँ रहते रहे होंगे, हमारे सदगुरु लोगों को प्रवचन सत्संग देते रहेंगे, तो उस माहौल में आप चले जाएंगे। यहाँ बैठ के आकर उस ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि जब कभी आप आए, काशी आए, बनारस आए, मतलब भारत आते हैं, तो आप यहाँ भी जरूर रखिए कि कबीर साहब की उन जगहों पे हम जाएं जहाँ पे हमारे सदगुरु ने समय बिताया, जहाँ से पूरा ज्ञान, अगर हम देखें तो हमारे कबीर पंथी या कबीर साहब का ज्ञान यहीं से उपजा है। यहीं से हमारे साहब ने देश विदेश जाकर अपने ज्ञान को फैलाया है, फिर वो लौट के यहाँ आते थे। तो पूरी तरह जहाँ से ये हमारा ज्ञान उपजा है, उस जगह पर बैठकर हम उसकी सुगंध को महसूस करें, स्वयं महसूस करें, तो ज़्यादा आनंद आएगा। और मुझे आशा है कि जब आप आएंगे, बैठेंगे, तो उस समय में आप भी चले जाएंगे जब कबीर साहब यहाँ रहा करते थे। ऐसी मैं आशा करता हूँ। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहीं विराम देता बहुत अच्छा आपने जो भी बताया, बहुत इंफॉर्मेशन। अभी लास्ट सेशन में भी हमने जो किया था, बाद में एक हमारे पे एक क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा मुझे कि जैसे लहर तलाव दिखाया आपने, अभी भी यहाँ पे हमने देखा, तो वो आरती वगैरह होता है क्या? आरती और सत्संग कैसे होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी। हाँ, देखिए, वो छूट गया था, मूल काम था। हम लोग ऐसा ऊपर की बातें कर रहे थे वस्तुओं की। यहाँ पर कबीर चौरा मठ में प्रतिदिन सुबह गर्मी के समय में 5 बजे मॉर्निंग में, और जो ठंडी का समय आता है, ठंड का जैसे अब आ रहा है, तो अभी 5:30 बजे, और थोड़ा होगा तो 6 बजे मॉर्निंग में प्रार्थना होती है, जिसमें आरती होती है और हम प्रार्थना करते हैं कबीर साहब की। उसके बाद शाम को 7 बजे कबीर साहब की बीजा पाठ है। शाम को इवनिंग में 7 बजे कबीर साहब की बीजक का पाठ करते हैं। कबीर साहब का मूल ग्रंथ हमारे यहाँ बीजक मान्य है, और उस बीजक का हम उसको 12 भाग में बांटा हम लोगों ने, और उसके एक भाग का एक दिन पाठ करते हैं। उसके बाद हम हमारे यहाँ प्रार्थना होती है, आरती होती है, शाम की आरती होती है। तो शाम की आरती का समय अभी वर्तमान में 8 से 8:30 है। तो 8 बजे शुरू होती है आरती, प्रार्थना करके आधा घंटा होता है, और पाठ आधा घंटा, 7 से 7:30। और बहुत अच्छा। वर्ष में जो कबीर जयंती है, ज्येष्ठ पूर्णिमा है, वो हमारे यहाँ का मुख्य पर्व है। और उस दिन देश भर से लोग आते हैं और बड़ा सत्संग होता है, 3 दिन का कार्यक्रम होता है। जी जी, बहुत अच्छा। तो अभी अगर किसी के पास कोई कंसर्न हो, क्वेश्चन हो, तो आज टाइम तो हमारे पास अभी 8 मिनट है, तो कोई बात, प्लीज रेज योर हैंड, तो हम आपको फोकस कर सके। अच्छा, तो वो दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे वहां पे कबीर जी ने भजन पे बहुत ध्यान दिया, एक मेडिटेशन पे भी बहुत ध्यान दिया कि मेडिटेशन कैसे करना है, क्या करना है। तो मेडिटेशन के लिए वहां पे कोई हॉल है क्या, कि कोई जगह ऐसी कि जहां पे आप बैठ के कबीर जी का आप अपने बिना विचार में ला सके? जी। देखिए आनंद भाई, ऐसा कबीर साहब की जो साधना पद्धति है, यहाँ पर वो हाल या सिस्टम नहीं बनाया गया कि एक ग्रुप में होगा। ये व्यक्तिक साधना है अपने यहाँ। तो जैसे आप आएंगे तो हमारे जो मंदिर है, समाधि मंदिर और विवेक मंदिर, वहां पर जगह है, बैठ कर ध्यान साधना कर सकते हैं। हम अपना करते हैं। अभी लहरतारा का जो पुराना मठ हमने बताया, वह एक बड़ा सा हाल अभी बना है। तो उसको भविष्य में यही है कि उसको एक साधना मेडिटेशन के रूप में डेवलप किया जाए, क्योंकि कबीर साहब की जो साधना है वो बैठ के कर सकते हैं। श्वास की साधना है, मेडिटेशन है, तो उसके लिए एक जगह चाहिए। अभी तक हम लोगों ने कोई ग्रुप की साधना वाली सिस्टम डेवलप नहीं किया है कि ग्रुप में वो साधना हो। लेकिन कोई इच्छुक होते तो हम उनको समाधि मंदिर में, बीजक मंदिर में बैठा के साधना करा सकते हैं। तो अभी देखो, अगर किसी को उसके बारे में अगर कुछ कहना है, कुछ कुछ वहां पे जगह के लिए ना, तो अगर को उद्देश्य करना है कुछ,
अपनी तरफ से कुछ करना है वहां पे, तो वहां पे कैसी सिस्टम है? कोई एडमिनिस्ट्रेशन है कि जिसे हम बात कर सके? जी है ऐसी व्यवस्था, एक सोसाइटी बनी है। अ, एक संस्था के तहत, सोसाइटी के तहत रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें भी बात किया जा सकता है। तो जो आप चाहेंगे उसके थ्रू बात हो जाएगी। अगर किसी को और को कुछ कुछ पूछना है, कुछ कर कंसर्न कुछ बताना है, तो प्लीज रेज योर हैंड, तो हम आपको फोकस करें। अम, और जो जगह पे वहां पे, जैसे आपने बताया कि वहां पे कोई रहने की जगह है। जी हाँ, ये थोड़ी समस्या है हमारे कबीर चौरा मठ में भी। और क्या है कि ये बहुत पुराना बना है और पुराने समय से अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो इसके जो रूम है बहुत पुराने पुराने हैं। तो पहले आश्रम जैसे व्यवस्था, जैसे टॉयलेट की व्यवस्था थोड़ी दूर होगी, स्नान करने की व्यवस्था थोड़ी दूर है। कमरे उस तरह के नहीं है जैसे बहुत कंफर्टेबल, बहुत पुराने समय में लोग चटाई दरी बिछा के, गद्दे बिछा के सोते थे। तो कुछ बड़े बड़े हॉल हैं, कुछ रूम हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी व्यवस्था, जैसे कहते हैं आज के तरह से उसको मॉडिफाई नहीं किया गया है। सोचा जा रहा है कि कैसे उसको किया जाए, क्योंकि अब जरूरत है, उसकी बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि समय के साथ चीजों को बदलना जरूरी है, जरूरतों के हिसाब से व्यवस्थाएं होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। शशि भाई, राम कभी आप बात कर सकते हो। राम कबीर भगीरथ जी। जी अ, जी। आप जो काम कर रहे हैं सही भगीरथ कार्य है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। तो अ, मैंने जो आपको जो वीडियो बनाया है वो देखा, तो मैं सोच रहा था कि इसमें तो कबीर का घर दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन जो कबीर का जो जो कबीर का घर जो शिखर पे है, तो वो शिखर पे जाने के लिए जी जो भक्तजन वहाँ आते हैं, तो इसके लिए आप कैसा कार्यक्रम करते हैं? वहाँ कोई सत्संग वगैरह होता है उसका, जी और कोई कई जगह पे कई वो गुरुजनों का जी बानी है उसकी संग्रह करके आपने कोई किताबें बनाई है और क्या है? तो किसी को जानना है और हमको पढ़ना है, तो वो क्या मिल सकता है वहां से? बहुत बहुत शुक्रिया। जी। शशि शशि जी का जो सवाल है बहुत ही जेन्युइन है। और देखिए, सही है, कबीर साहब का जो घर है शिखर पे जाने के क्या रास्ते हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किताबों के रूप में कबीर वाणी प्रकाशन केंद्र के रूप में काम करता है। वो कबीर साहब की वाणियों को, उनके जो मूल ग्रंथ है बीजक, कबीर जीवन चरित्र, और उसके बाद भी एक महाबीजक, जैसे कबीर साहब के बीजक के बाद भी बहुत सारे ऐसे पद थे, साखी शबद रमैनिया थी, जो लाइब्रेरी में थी या लोगों के जबान पे थी। मतलब पांडुलिपि जो आप मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, बहुत से ऐसे लाइब्रेरियों से छांट कर एक बहुत बड़ी बुक बनाई गई, महाबीजक। मतलब बीजक का भी वो समझिए कम से कम 10 गुना ज्यादा बड़ी है। तो हम्म। इस तरह के काम होते रहते हैं, उनके शब्द को, साखियों को हम लोग संग्रह करने की कोशिश करते हैं, और पुस्तकें प्रकाशित होती है, तो साहित्य आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा, जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे हमारे जितने भी संत हैं वो कोशिश करते हैं, अगर कोई जिज्ञासु होता है, आप पूछना चाहेंगे तो पूरी तरह से आपको बता देंगे। मतलब अच्छा। जबरदस्ती वो साथ में नहीं आते, जैसे अन्य मंदिरों में आप जाएंगे तो हम्म। आपके साथ तब तक नहीं आएंगे जब तक आप उनसे कहेंगे कि नहीं, कि हम जानने की इच्छुक हैं। वो चाहते हैं कि आप फ्री होके देखें। तो हम्म। जब आप आएंगे और कहेंगे कि हमको यहाँ के बारे में बताइए, कुछ साधना बताइए, तो वो आपको तुरंत मदद करेंगे, आपको बताएंगे यहाँ के बारे में, यहाँ के इतिहास, कबीर साहब की जगहों पे वो ले जाएंगे। और अगर आप बैठ के उनसे तो सिखाता रहे। जैसे हम लोग हैं, कोई आते हैं, पिछले बार कुछ लोग आए थे यहाँ पर ना, तो एक है, आप संवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो आपकी जिज्ञासा होगी, प्रश्न होगा, तो साहित्य रूप से। और हम लोग खुद उपस्थित होके कोशिश करते हैं कि जितना हम समय दे पाए आपके पास, अधिक से अधिक समय वो देते हैं कि आपका ज्ञान बढ़े और आप उस अनुभूति को करें। ठीक है, तो हम जो एक किताब पढ़ रहे थे, कबीर परछाई, जी। हम्म। तो इसमें कई अंग्रेजी में उसको में से जो संवाद किया है, तो हम्म। वो मेक्सिको के प्रोफेसर ने लिखा है वो, मैं उनको जानता हूँ, शायद। डेविड लॉरेंस जी।
हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी। वो यहाँ रह के उन्होंने काम किया। डेविड लॉरेंसन साहब ने बहुत अच्छा काम किया। वो अच्छा। यहाँ रहते थे और यहाँ की लाइब्रेरी में भी काफी उन्होंने काम किया, जो हाथ से लिखी हुई बहुत सारी चीजें यहाँ रखी है। हाँ, तो तो उसने डेविड वो लॉरेंस। किताब में उल्लेख किया था, इसलिए मैं इसकी उस तरफ ही जा रहा था। तो उसके साथ आप लोगों डेविड लोरेंजिन के साथ शायद बात की होगी। तो जी। उसने जो रेफरेंस दिया था वो किताब में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो आपके साथ बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ जब देश में आएंगे तो जरूर आने की कोशिश करेंगे और मिलेंगे। और जो कबीर साहब के जो शिखर की बात हो रही है, तो शायद वहाँ भी आप जो गुरुजनों है बैठे हैं, तो साथ उसके साथ सत्संग करके कुछ और हमारी जीवन शैली भी कुछ ऐसी बने। तो फिर से राम कबीर, जी। थैंक यू वेरी मच। राम कबीर। राम कबीर, थैंक यू शशि भाई। तो गोविंद काका wants to say something. काका अनम्यूट करजो તમે. ઓકે, રામ કબીર કાકા. હા બોલો, સંભળાય. राम कबीर भगीदास जी साहब, आपका खूब खूब आभार। बड़ी अच्छी हिस्ट्री आपने बताई कबीर चौरा की, कबीर साहब का कबीर। घर की। मैं आया था उधर, आपने जो बोला कि उधर की ये हवाएं है जो हम महसूस करते हैं, बिल्कुल बात सच है। बिल्कुल सिंपल है। वो जो स्ट्रीट है और जो झुपड़ी है, कुआ है, सब ओरिजिनल है। तो ऐसा लगता है कि हम कबीर साहब के बीच में ही है। बड़ी अच्छी बात आपने बताई, आपने हिस्ट्री बताई, खूब खूब आभार। तो दूसरी बात यह है कि आपने जो बताया चरखा, पादुका, त्रिशूल और गोरखनाथ जी, सर्वाजीत जी, इस सब की बात आपने इसमें ले ली। खूब सर, बड़ी अच्छी बात है। तो जो सर्वाजीत की बात है ना, उसमें जो वो एक साखी है, पोथी पढ़ पढ़ जग बुआ पंडित भयानक होय, अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो मेरे ख्याल से ये साखी सर्वाजीत के लिए लिखी है, ऐसे ही उसको सबक सिखाने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि कॉलेज में जाके नहीं पढ़ो। कई लोग बोलते हैं कि कॉलेज में जाने की जरूरत क्या है, इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ये पढ़ने की बात नहीं है, ये सर्वाजीत के लिए ही बताई है, ऐसे मेरे को लगता है। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही है। खूब खूब आभार आपका, राम कबीर। जी, राम कबीर। और गोविंद भाई जी ने जैसा कहा, अभी हमें कबीर साहब को बहुत समझना है। कबीर साहब ने उसकी इच्छा होती, हम सीधे सीधे कह देते हैं बहुत सारे। इस पे मैं भविष्य में एक टॉपिक बनाया हूँ कि हम कबीर साहब को कैसे समझें, उनकी वाणियों से उनका मूल क्या है और वो कहना क्या चाहते हैं और हमने क्या लिया अपने मतलब से। जैसे अगर हम पढ़ना नहीं चाहते तो पोथी पढ़ पर जगमुआ बता देंगे। और ऐसे बहुत सारी चीजें, हम पूजा पाठ नहीं करना चाहते तो बहुत सारी चीज, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल कबीर साहब की बात को लेकर लोगों को दुखी कर रहे हैं। वो सही नहीं। कबीर साहब का मतलब है हमारे अंदर बदलाव। पढ़ना बुरा नहीं है, उन्होंने शास्त्र का भी खंडन नहीं किया, लेकिन हम उससे आगे कितना चाहते हैं ये समझना है। तो बहुत अच्छा आपने जो कबीर साहब के लिए वो जो साखी सरवाजीत के लिए कहा होगा ऐसा खोजा, बहुत अच्छी बात। आपको बधाई, धन्यवाद। राम कबीर, सो अभी तो जैसे मैंने आप पहले भी बताया था कि भगीरथ दास जी हमसे इंडिया से वाराणसी, बनारस, काशी से जुड़े हुए हैं अभी। और वहां पे तो आप जानते हो कितना बजा है। आप तुम आपके लिए और हमारे लिए आप इतना मेहनत करते हो। और हमारी जैसे आज ये हम सभी को आप कबीर चौरा पे ले गए। एक ये आनंद हमें हमेशा रहेगा। आप ऐसे
जैसे आप हमें बताता रहिए कि कौन सी जगह पे आप जा रहे हो, वहां पे क्या जैसे, तो हम भी यहाँ पे सेशन ऐसा ही करते रहेंगे। और अभी आपने बताया जी कि कबीर जी का जो नॉलेज है वो कभी किसको कैसे उद्देशित किया और क्या बताना चाहते हैं, वो भी हम बाद में सेशन करेंगे उसके बारे में भी। तो आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आते ही रहना हमारे साथ और जुड़ते रहना। और अभी प्रेक्ष अब जो जुड़े हुए हैं, जो जुड़ने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उसको एक माफी मांग लेता हूँ आज, कि जो जैसे कबीर जी ने बताया कि कबीर जी का ज्ञान लेने के लिए शिखर पे जाना पड़ता है और वहां पे कितनी मुश्किलें आपको सामना करनी पड़ती है। तो आज कुछ ये सेशन में कुछ ऐसा ही हुआ। टेक्निकल के लिए कभी कभी जो शब्द है वो घूम जाते थे, नहीं भी सुनाई देते थे, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। तो हमने जो कोशिश किया वो पूरा कोशिश हम कर रहे हैं हमारे दिल से। तो आज आप फिर से अंतिम प्रार्थना जो हम करते हैं वो आप सुना और हम बाद में सेशन समाप्त करेंगे आज। राम कबीर, थैंक यू। जी। आ, नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सत्विद्यासुविचारसारशिवदं शिष्ये च सेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याङ्कृतं सन्निभम् तमलीलाघृतविग्रहमयतिवरं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परम्।